Students, how are you? I think your unit tests are over. You have done very good or not, that you have seen in your result also, but there is scope of improvement everywhere. And in this exam, from reading section, nothing was included, but when we will appear for term, then in the paper reading, writing and literature, all portion will be included. Before this, we have done in reading section comprehension passages. I have given you some tips also how we can solve comprehension passages easily, and we have done practice also, but still practice is not sufficient. We have to do more. And along with that, the second question in CBSE exams in class 11th and 12th, first question is of 12 mark, that is reading comprehension, and second is note making, that include 8 marks. 4 marks for this. Previously it was 5 plus 3, now I think is 5 plus 5. Now the thing is how to solve note making. Note making is little difficult if we don't know the basic rules how we can solve it. And class 11th is new, and for class 12 they have already done previously, but still some students they don't know the basic rules of note making. Now today we will discuss about the note making, and it requires a lot of practice. Without practice, students, you cannot do perfect note making. And for this we will solve at least 5 or 6 passages then only, and you have to work regular. Many students they never answer the questions. I have given so many tests, but you all are not attempting. What is the reason? I don't know what is your problem. But those who are doing regularly, certainly they will be benefited by this, and during the exam naturally the results will be very good. Now for note making, you will be given a passage of 300 to 350 words. What we have to do is that we have to give a thorough reading to the passage. Okay, for give thorough reading to the passage, and when we read the passage thoroughly, we will come to know that this particular passage revolve around some particular theme. There may be pollution, maybe health problem, maybe drug, maybe any other. There will be a particular main theme that the writer want to tell us about that particular thing. Okay, we have to come to the point that this whole passage revolve around what the problem is, and that thing will be the title of the passage. No title will be given in note making, and the marks are divided for title, heading, subheading, and how the marks are divided, that we will also do. Now before note making, I want to tell some rules, basic rules, how we can make an effective note making without much stress. And when we read the passage, there may be some words whose meaning you don't know, but students, when we give a thorough reading, then we will be able to understand the words. There is no such problem that when you don't know any meaning of the particular word, then your note making will be wrong. No, it won't be a near about word meaning you will be able to understand. Now note making, for note making some tips. Must write the title. It should it state that the majority of the passages talks about. आपने सबसे पहले क्या करना है कि टाइटल, जब हम रीड कर लेते हैं पैसेज को थारोली, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो घूमता है, और उसको जो है हमने क्या देना है, टाइटल बनाना है. टाइटल जो है कभी भी सेंटेंस में नहीं होता, इट विल बी इन फ्रेजेस. ठीक है, अलग अलग पर्सन के हिसाब से टाइटल वेर भी कर सकता है लिटिल बिट. There may be 5, 6, 7, 8 type of title of a particular
पेसेस मस्ट राइट द टाइटल, इट शुड स्टेट दैट व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ द पेसेस टॉक्स अबाउट, कि ये पेसेस किसके रिवॉल्व घूमते हैं। अगर मैं आपको एक टाइटल देती हूँ लॉकडाउन, तो लॉकडाउन ऊपर टाइटल है, इट मीन्स कि दिस इज ऑल अबाउट लॉकडाउन। कोविड-19 अगर टाइटल है, इट मीन्स द थिंग इज क्लियर कि ये कोविड-19 की प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। इसी ढंग से पॉल्यूशन, तो नेचुरली टाइटल पॉल्यूशन है तो वी विल कम टू नो कि ये पॉल्यूशन के सराउंडिंग घूमता है। तो इससे हमारे को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, पॉल्यूशन है, तो उसके कॉजेज, उसके प्रिकॉशंस, नेचुरली देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि इससे हमें पता चलेगी। मस्ट राइट द टाइटल, इट शुड स्टेट व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ द पेसेस टॉक्स अबाउट। देन मिनिमम 4 abbreviations to be used in note making and make key to abbreviations after writing the notes and note after the summary। देखिए क्या है ये, आपको लिए ये बड़ी न्यू थिंग है कि एब्रीविएशंस क्या होती है, शॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। जैसे कि CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके लिए हमने क्या यूज़ करते हैं, C_D_S_E। तो ऐसे ही आप डॉक्टर के लिए DR, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई। डिप्टी कमिश्नर के लिए DC, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर के लिए PM। ये कुछ तो एब्रीविएशंस ऐसी हैं कि जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप केमिस्ट्री के अंदर कितने फार्मूलाज यूज़ करते हो, मैथ्स में कितने फार्मूलाज यूज़ करते हो, कितने आप जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एट द रेट ऑफ, डिवाइडेड बाय, ये सारी एब्रीविएशंस वी कैन यूज़। ठीक है, आप जो है, लेकिन हर एक पेसेस में कुछ ऐसे लेंथी वर्ड्स होते हैं तो उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है। मैं मीन टू से कि जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखोगे कि POLLUTION पॉल्यूशन होता है। अगर हम इसको POLL फुल स्टॉप लगा दें तो दिस इज इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो अब बार बार पैसेज में अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है और अगर एक स्टूडेंट को बार बार वो, जैसे सपोज मैं कोई नोट्स डिक्टेट करा रही हूँ और आप जो है नोट कर रहे हो, ठीक है, तो नोट करते हुए आप बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखोगे तो ये जो है आपके लिए इट विल बिकम वेरी कम्बरसम, आपकी स्पीड पे असर पड़ता है। देखो, फर्स्टली मैंने आपसे ये डिस्कस नहीं किया कि व्हाई नोट मेकिंग इज़ यूज्ड, कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या है कि कोई भी आप नोट मेकिंग का मतलब नोट्स बनाना, और ये नोट्स बनाना कोई हमारे लिए सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है कि CBSE के क्वेश्चन नोट मेकिंग का है इसलिए ये, नो, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट द लाइफ। बच्चे देखो, जैसे कि सपोज यू वांट टू गिव ए स्पीच और आपने स्पीच देनी है और यू फील कि मेरा कोई पॉइंट रह ना जाए, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, आप जैसे डिबेट और कंपटीशन स्पीच में जाते हो तब तो आप कोई पेपर नहीं यूज़ कर सकते, यू हैव टू स्पीक थारोली। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस है या आप कोई कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपका काम है लोगों को एडवाइस करना, तो आप सारा तो रीड नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कुछ मेन पॉइंट्स नोट कर लेंगे कि टुडे आई हैव टू टेल ऑल दिस पॉइंट्स। वो 10 पॉइंट्स आपने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, तो दैट यू नो इट वेरी वेल कि ये पॉइंट का मतलब क्या है। तो दिस वे लाइक दिस नोट विल हेल्प यू। अगर पॉलिटिशियंस के लिए हेल्पफुल है, हमारे कहीं भी, सेकेंडली आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है और आपका डे आफ्टर टुमारो आपका पेपर है, जैसे फिज़िक्स का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, आपको ये लगता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये डेफिनेशंस हैं, ये फार्मूलाज हैं जो कि मुझे याद रखने हैं एंड आई हैव टू रिवाइज, मतलब स्टिल आई फॉरगेट समथिंग, तो वो पॉइंट्स आप शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ कर लोगे, ठीक है, वो नोट कर लोगे। पूरा चैप्टर तो नोट नहीं करना ना, तो वो तो बुक में है ही, तो हमने एक पेज पे हो सकता है कि हम 4 चैप्टर्स का मटेरियल नोट कर लें। सो दीज आर द नोट्स। नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप कोई भी पर्सन, जैसे अभी तो आप स्कूल में हो, कॉलेज में जाओगे, आपके कॉलेज लेक्चरर जो है वो फटाफट अपना लेक्चर रेडी करके आते हैं एंड दे विल कीप ऑन स्पीकिंग, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो है उनको यही नहीं पता चलता कि क्या टीचर बोल के चला गया है, ठीक है, और घर जाते हैं, चलो उस टाइम उनको फिर भी पता होता है कि दे हैव स्पोकन, लेकिन घर जाके बुक उठाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता आज टीचर ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ एंड कर दिया।
तो जो बच्चे बहुत मतलब स्टडी को माइन्यूटली लेते हैं, वो टीचर जब बोलता है तो कुछ पॉइंट्स नोट करते रहते हैं कि व्हाट टॉपिक टीचर हैज़ टेकन टुडे, व्हाट डिटेल्स ही हैज़ गिवन। तो नॉट ऑल द डिटेल्स, बट वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाते हैं। तो दैट हेल्प देम, उनको पता होता है कि लेक्चर कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक आज करवाया, और नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, मुझे कल क्या करके जाना है। देखो, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में फ़र्क होता है, एंड यू विल कम टू नो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्कूल कि स्कूल में हम आपको हर चीज़ बार बार रिपीट करते रहते हैं। अभी मैंने नोट मेकिंग नहीं शुरू कराई है, उससे पहले आई एम गिविंग यू सो मच डिटेल्स। लेकिन कॉलेज में टीचर ने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बात करेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हैं, पूरी बुक डिटेल में नहीं करवाते, हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो कुछ बच्चों का तो ये हाल होता है कि उनको कॉलेज में यही नहीं पता चलता कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि बुक तो उठानी नहीं होती वहाँ पे, वो टीचर नहीं उठाता है, बच्चे भी नहीं उठाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना माइन्यूटली किसी चीज़ को लेते हो। तो नोट मेकिंग आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। आपने कहीं भी किसी भी पर्सन को सुन रहे हो, आप उसके पॉइंट्स नोट करने हैं, आपने खुद ने स्पीच देनी है, आप कहीं भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से नोट कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। शॉर्ट एंड ब्रीफ जो है लिख कैसे सकते हैं हम, that we make you trained for this, so be attentive for this, और बड़े ध्यान से करेंगे ताकि ये 5 मार्क्स जो है नोट मेकिंग ये फ्री के आपको मिलें। और फिर समरी हमने कैसे करनी है, वो 3 मार्क्स की होती है। मैं ये मान के चलती हूँ कि नोट मेकिंग के 8 मार्क्स आपके फ्री के होते हैं, अगर आप टीचर को ध्यान से सुने और उसकी एडवाइस के हिसाब से आप प्रैक्टिस करें। नेचुरली ये 8 मार्क्स ये और 12 मार्क्स कॉम्प्रीहेंशन के, आपके 20 मार्क्स तो किसी बच्चे के कटने ही नहीं चाहिए, मैं ये मान के चलती हूँ, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बी केयरफुल नाउ, और थोड़ा सा मुझे सुनेंगे, इतना मतलब कष्ट उठाएंगे थोड़ा, कि फर्स्ट है कि मस्ट राइट द टाइटल। टाइटल का मैंने कहा कंप्लीट लाइन नहीं होंगी, फ्रेजेस में ही आपने लिखना है। मिनिमम 4 एब्रीविएशंस, आपको साइड में एक बॉक्स बनाना होता है, और उस बॉक्स में जो है जो आपने, जैसे पॉल्यूशन है या आपने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपने किसी भी वर्ड के लिए यूज़ की है, वो शॉर्ट फॉर्म जो है आपने उसके ऊपर लिखनी है। 4 लिखी है आपने, 5 लिखी है, वो आपने लिख के दिखानी भी है, शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है abbreviations to be used, make key to abbreviations after writing the notes। नोट्स के साइड में भी आप ले सकते हो, इस जगह जैसे साइड में आप पेज के, और आप या फिर नोट मेकिंग पूरी होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही आपकी राइट होंगे। सेकेंडली हेल्पिंग वर्ब्स, अब नोट मेकिंग करते हुए हम कंप्लीट सेंटेंस में क्या ओमिट कर सकते हैं, आप ओमिट कर सकते हो हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउंस है, डिटर्मिनर्स है, ये सब ओमिट कर सकते हो। फिर उसके बाद राइट मिनिमम 3 मेन हेडिंग्स एंड 3 सब हेडिंग, मैं ये मान के चलती हूँ 3 नहीं, आपने 4 और 5 मिनिमम आपने हेडिंग और सब हेडिंग लेनी है, एंड ज़्यादा नहीं, आपने मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5। राइट फ्रेजेस नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, नेक्स्ट है कि फ्रेजेस के रूप में लिखना है, सेंटेंसेस के रूप में नहीं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ इंडेंटेशन, कि हमने उसको जो है शॉर्ट और ब्रीफ फॉर्म ही हम उसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ इंडेंटेशन। डू नॉट यूज़ नंबर एज एब्रीविएशंस, फॉलो माई पॉइंट। जैसे ये अगर आपको नीचे एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे 2 लिखना है, तो आपने अगर 2 लिख देते हो, ये वाला 2 मैथमेटिकल, तो ये जो है गलत है। विद की जगह विद लिख देते हो बच्चे आजकल, जैसे मैसेज लैंग्वेज में, दिस इज आल्सो रॉन्ग। करेक्ट क्या है, जैसे एजुकेशन के लिए आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की कॉन्ट्रैक्टेड, एजुकेशन के लिए आप इस ढंग से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ फर्स्ट फ्यू लेटर्स मतलब और फुल स्टॉप लगा देंगे, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इस तरह की आपने मिनिमम 5 और 6 आपने यूज़ करनी है। एंड अचीवमेंट के लिए जैसे आपने ACHVMNT फुल स्टॉप, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ओमिट क्या किया आपने, वॉवल्स ओमिट कर दिए उसमें से। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए वॉवल्स जैसे ओमिट कर सकते हैं, फ्यू लेटर्स ओमिट कर सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, आपने बी को कॉमा लगा के फुल लगा दिया ब्यूटीफुल। कैनॉट,
राइट फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट फ्यू लेटर्स आप लिख सकते हो। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए एक्रोनियम्स आपने यूज़ किया, या एट द रेट ऑफ एंड कन्वेंशनल सिंबल्स जो यूज़ कर रहे हैं ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारे करेक्ट है। गवर्नमेंट के लिए गवर्न, आंसर, लिमिटेड, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन जो कि ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, ये सारे आप नोट मेकिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नोट्स मेकिंग शुड नॉट बी लेंथी। दूसरी बात है ये लेंथी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट कवर मोर देन 2 साइड्स ऑफ ए पेज। एक पेज की 2 साइड से ज़्यादा कवर ना करें। ठीक है, देन ये तो था हमारा नोट मेकिंग के लिए। अभी इसका हम फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे, हाउ टू राइट, ये थोड़ा सा ब्रीफली मैंने बताया है। फिर आगे समरी, 3 मार्क्स की समरी होती है। तो डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट गिवन इन द एग्जाम, कि ये आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, 35 to 50 वर्ड्स में मैक्सिमम, तो आपने उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। समरी इज मेड आउट ऑफ नोट्स नॉट द पैसेज। जो नोट्स आपने लिए हैं, ठीक है, उनको आपने डिटेल में लिखना है। डू नॉट डिवाइड द समरी इन डिफरेंट पैराग्राफ्स, मीन टू से कि आपने पैसेज उठा के नहीं लिखना। 300 to 350 वर्ड्स का पैसेज है और उसको आपने उसमें 4 पैसेज बन रहे हैं सपोज, तो आपने एक पैसेज उठा के लिख दिया समरी में, दैट विल बी रॉन्ग। आपने नोट्स बनाए पूरे पैसेज के, तो उसको आपने एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट विल बी इजी वे। एंड डू नॉट डिवाइड द समरी इन डिफरेंट पैराग्राफ्स, वो एक ही पैराग्राफ होगा। इट शुड बी अटेम्प्टेड जस्ट आफ्टर द नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के बाद में हमने समरी करनी है, पहले नोट मेकिंग। डू नॉट स्टार्ट लाइक दिस, द पेसेज टॉक्स अबाउट, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना द पेसेज टॉक्स अबाउट दिस थिंग दैट थिंग, नो। डू नॉट यूज एनी एब्रीविएशंस इन समरी। समरी में आपने कंप्लीट विद डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, सब आपने यूज करना है। राइट कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस एंड राइट कंप्लीट एंड ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द नोट्स एज फार एज पॉसिबल, कि जो आपको नोट मेकिंग में जो आपने ऑर्डर का मतलब क्या है कि सिस्टमेटिकली फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिया, सेकंड पे क्या लिया, थर्ड फोर्थ पे क्या लिया, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। नाउ ये फॉर्मेट है नोट मेकिंग का, कि टाइटल हमने अंडरलाइन भी करना है और फिर नोट्स लिखने हैं। नोट्स लिखने के लिए आपको जो क्या सिलेक्ट करना होता है, मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग। आपने इसमें ना इंडेंटेशन, ये जो है फॉर्म ये है कि 1 आपका जो है पहला हेडिंग क्या है, फर्स्ट 1, और सब हेडिंग 1 हो गया। सब हेडिंग लिया तो 1 फुल स्टॉप 1, और फर्स्ट सब हेडिंग में आपने 1.2 नहीं लगा सकते। आपका सेकंड पैसेज है तो आपने 2 जो है हेडिंग सेकंड आया तो 2 लिखा, और उसके आगे जो है 2.1 फर्स्ट सब हेडिंग, 2.2 सेकंड सब हेडिंग, फिर थर्ड आपने इसी ढंग से मेन हेडिंग, सब हेडिंग B.1 हो गया या B.1.1 ऐसे भी आप लगा सकते हो। लेकिन ये जो है एक अब फॉर्म आपको बताई गई है। इसके अलावा आप जो है फॉर्मेट जो है आप डिफरेंट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते। लाइक दिस यू कैन आल्सो यूज़ या जैसे टाइटल, फिर हेडिंग जो है आपने उसको नंबर 1 दिया है न्यूमरोलॉजी में। हेडिंग जो है 1 2 3 4, इस ढंग से आपने 4 हेडिंग सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद में सब हेडिंग में आपने यूज़ करना है ABCD तक आप सब हेडिंग ले सकते हो। उसके बाद में इफ़ यू वांट टू गिव मोर डिटेल तो हमने रोमन लेटर्स में 1 2 3 4 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड हेडिंग आ गया सब, और सेकंड हेडिंग फिर सेकंड सब हेडिंग आ जाएगा। उसके बाद में फिर आप ABCD ऐसे यूज़ करेंगे, फिर आप रोमन लेटर्स में फिर 1 2 3 4। तो आप जो है जितनी डिटेल देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। इस ढंग से आपने 4 कम से कम हेडिंग इसमें सिलेक्ट करने होते हैं। आपने जैसे 1.1 जैसे 1 हेडिंग लिया, यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 1.4 यहाँ तक ले सकते हो। फिर आपने और डिटेल देनी है तो आप सेकंड फॉर्म वो होती है कि 1.1.1 1.1.2 मतलब डेसिमल फॉर्म भी ये आ जाती है और ये भी फॉर्म आ जाती है। ये दोनों आपको ज़्यादा अच्छे से फॉर्मेट क्लियर होंगे। अच्छा, जो आपको लिखनी है शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशंस वो आप ये साइड में जो है बॉक्स बना लेंगे। इसमें जो है आपने जो
मेन आपका वर्ड क्या है, और यहाँ पे जो आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ की है किसके लिए यूज़ की है। ये जो है आपने 1 2 3 4 5 6 तक मैं मानती हूँ कि 5 6 लो, एक दो एक्स्ट्रा ही लो, तो दैट विल बी बेटर। लेकिन ध्यान ये रखने हैं कि जो हम शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो आपके नोट मेकिंग में यूज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने बॉक्स तो बना दिया, कई बच्चे ऐसे ही बॉक्स बना देते हैं और उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर चेक करता है और वो आपके मार्क्स काट लेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जो भी आप शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करोगे उसको आपने यूज़ करना है रियल सेंस में। ये नहीं कि हमने ऐसे ही लिख दिया, इट विल इफेक्ट योर मार्क्स। ठीक है, आई थिंक द रूल्स आर क्लियर, और ये ज़्यादा क्लियर होंगे अगर हम उसको पैसेज को एक सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन भी मैंने इस पैसेज का दिए, और इसको जो है आपने इस ढंग से पॉइंट्स में लिया गया है। चलो ये भी एक फॉर्म है बी का, जैसे बी 1 पॉइंट ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक द नोट्स। इसमें जो है द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल। सोमनाथपुर में एक विलेज है, उसमें एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल है, बिल्ट अराउंड 1268 AD बाय द होयसाल्स ऑफ कर्नाटका, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स। ये जो है होयसालास जो है ये बहुत फेमस था वहाँ पे टेम्पल बिल्डिंग आर्ट में। बेलूर एंड हेलेबिड आर अमंग देयर बेटर नोन वर्क्स। ये जो बेलूर और हेलेबिड ये इनके बहुत अच्छे मतलब उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे, कलाकारी के नमूने। वाइल दे सफर्ड ड्यूरिंग द इन्वेजन्स ऑफ 14th सेंचुरी में जो भी हमले हुए इनको जो है नुकसान पहुंचाया गया। द सोमनाथपुर टेम्पल स्टैंड्स मोर और लेस इंटैक्ट इन नियर ओरिजिनल कंडीशन। सोमनाथपुर का जो टेम्पल है इसका कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब कोई भी इसको तोड़फोड़ नहीं कर सका। दिस स्मॉल टेम्पल कैप्टिवेट्स विद द ब्यूटी एंड वाइटलिटी ऑफ इट्स डिटेल्ड स्कल्पचर कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी इंच ऑफ द वॉल्स, पिलर्स एंड इवन सीलिंग्स। मतलब जो कलाकार होते हैं वो जो स्टोन पे कार्विंग करते हैं, मतलब उन्होंने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी है, हर जगह हर इंच हर वॉल हर पिलर को उन्होंने कवर किया है। इट हैज़ 3 शिकारास एंड स्टैंड्स ऑन ए स्टार शेप्ड रेज प्लेटफॉर्म। स्टार शेप का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर 3 शिकारे बना रखे हैं ऊपर टॉप पे, एंड रेज प्लेटफॉर्म विद 24 एजेस। द आउटर वॉल्स हैव ए प्रोफ्यूजन ऑफ डिटेल कार्विंग, और बाहर की वॉल है उन पे भी काफ़ी अच्छे से कार्विंग की गई है। द एंटायर सरफेस रन ओवर बाय कार्व प्लेक्स ऑफ स्टोन, चारों पासे जो है स्टोन की कार्विंग है। देयर वर वर्टिकल पैनल्स कवर्ड बाय एक्सक्यूसाइट फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। मतलब अंदर जो पैनल पे क्या होती है, तस्वीरें होती हैं, तो उसमें गॉड और गॉडेस चारों साइड में अंदर जो है तस्वीरें लगी हुई है भगवान की, विद मैनी इनकारनेशंस बीइंग डिपिक्टेड, और उस पर बहुत अच्छी कलाकृति है। देयर वर नेम्स टू, सम कैरिंग एन ईयर ऑफ मेज, ए सिंबल ऑफ प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब कुछ इस तरह के सगुन से दिखाए गए हैं जिसमें ईयर ऑफ मेज जैसे मक्की के दाने का बना हुआ कान हो, एंड द एलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन, बहुत सारे उनको जो है गॉडेस वगैरह को जो है हार श्रृंगार किया हुआ है उनका, उनको बहुत सारी ज्वेलरी पहनाई हुई है। वेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होयसाला स्कल्पचर वॉज ए रिमार्केबल फीचर। On closer look, and it is worth it, the series of friezes on the outer walls reveal intricately carved and caparisoned elephants, और उस पे एलिफेंट्स भी बनाए गए हैं, चार्जिंग हॉर्समैन भी हैं, एंड स्टिलाइज फ्लावर्स, वॉरियर्स, म्यूजिशियंस, क्रोकोडाइल्स एंड स्वान्स, हंस भी बने हुए हैं, क्रोकोडाइल्स भी। तो ये जो है द टेम्पल वॉज एक्चुअली कमिश्नर ऑफ सोमा एंड डंडनयाका किंग। ये एक राजा ने बनाया ऑफ सोमनाथ, he named the village after himself, and the minister of the Hosala king and Narasimha the third. The temple was built to house
3 वर्जन्स ऑफ कृष्णा के मूर्तियों का उसमें दिखाया गया 3 वर्जन्स. द इनर सेंटर ऑफ द टेम्पल वॉज द कल्याणा मंडपा. लीडिंग फ्रॉम हियर वर 3 कॉरिडोर्स ईच एंडिंग इन ए श्राइन. तीनों कॉरिडोर एक श्राइन में जाके बंद होते हैं. 1 फॉर ईच काइंड ऑफ कृष्णा, वेणुगोपाला एंड जनार्दना एंड पर्सना केशवा. दो ओनली 2 रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. अभी 2 ओरिजिनल फॉर्म में, एक नहीं है. इन द डार्कनेस ऑफ द sanctum 1 minute and in inner center the temple was the Kalyana Mandapa. Leading from here were 3 corridors each ending in a shrine and one for each kind of Krishna, Venugopala, Janardana and Prasanna Keshava. Though only 2 remain in their original form. In the darkness of the sanctum and sanctorum, I try to discern the different images. The temple's sculptural perfection is amazing. कि अमेजिंग है उसकी जो टेम्पल की फॉर्मेशन. एंड इट इंक्लूड्स द डोर्स ऑफ द टेम्पल एंड द 3 एलिगेंटली कार्व्ड टावर्स. 3 टावर बने हुए हैं, इसके बहुत सुंदर जो है गेट बने हुए हैं और बहुत सुंदर कार्विंग है. तो ये आप इसको पढ़ के क्या आपको पता चला, ये जो है मेनली इसका हेडिंग क्या हो, टाइटल क्या हो सकता है इसका आपके माइंड में क्या क्या बात आ रही है. देखो इसमें मेन ये सोमनाथ के टेम्पल के ऊपर है. ये सोमनाथ का टेम्पल क्या है, कहाँ है, कैसे इसकी लोकेशन है, इसके ऊपर कैसा स्कल्पचर किया हुआ है. तो मेन बात किस पे आ गई है, टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर. ठीक है, तो टाइटल क्या आएगा, सोमनाथपुर टेम्पल सोमनाथपुर. अब आपका पैसेज जो है, ये आपका पैसेज जो है इसमें ये मतलब बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, वैसे थोड़ा छोटा ही है. आपका पैसेज जैसे है, अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. अब आपके पास 2 पार्ट्स है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में से 2 हेडिंग लें, 2 हेडिंग सेकंड पार्ट में लें, ठीक. तभी अभी एक बार हमने रीड किया, अगर आप इसको एक बार और रीड करोगे तो थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर कि किस ढंग से पहले पैसेज में आप क्या इसके बारे में, हमें पेंटिंग्स के बारे में पता चला है. तो इसमें पहले पैसेज में क्या है, प्रोमिनेंट टेम्पल्स ऑफ सोमनाथपुर. ठीक है, बिल्ट कब बनाया गया, तो A.1 में आप ये देंगे, बिल्ट बाय होयसालास एंड बिल्ट बाय मोस्ट प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स एंड बेलूर एंड हेलेबिड सफर ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ. मतलब ये कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं है, 2-3 वर्ड्स में आपने हर एक लाइन को कंप्लीट करना है. इसी ढंग से बी इसका पॉइंट क्या है, टेम्पल द ब्यूटी एंड वाइटलिटी. इसमें B.1 आप ये B.1 B.2 भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट मैं उस दूसरे मेथड को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. डिटेल स्कल्पचर कवरिंग वॉल्स, पिलर, सीलिंग्स, 3 शिकारास. ठीक है, फिर द आउटर वॉल्स डिटेल कार्विंग, द इंटायर सरफेस कार्ड प्लेक्स ऑफ स्टोन, वर्टिकल पैनल्स. देन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होयसाला स्कल्पचर, series of friezes on the outer walls revealed intricately carved and charging horsemen, stylized flowers, warriors. ये क्या है, होयसाला स्कल्पचर के कैरेक्टरिस्टिक है. टेम्पल इन द हिस्ट्री एक्चुअली कॉम सोमा and inner center of temple was the Kalyana, leading 3 corridors each ending in a shrine and each kind of Krishna, Venugopala, Janardana जो है इसमें पेंटिंग दिखाई गई है. ये थे आपके 4 पैसेजेस. ठीक है, अब की और एब्रीविएशंस जैसे आपने क्या है, इंक्लूड्स के लिए INC यूज़ किया, एक्सक्यू साइट के लिए EXQ, फिगर्स के लिए FIG एंड टेस्टिमोनी के लिए TSTMNY. इसको जो है आपने सारे वोवल्स हटा दिए. एंड प्लूरलिटी के लिए आपने फिर जो है इसमें से वोवल निकाल दिए. कमीशन्ड CONN, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, सारा पीछे का छोड़ दिया. तो ये था कि किस ढंग से आप इसके नोट मेकिंग कर सकते हो. तो इसमें आपने फिर वही पॉइंट्स हैं ये सारे जो कि हमने डिटेल में लिख दिए. दिस इज़ हाउ नोट मेकिंग इज़ डन. मैं आपको एक और इसका फॉर्मेट दूंगी कल. दूसरा फॉर्म है
और एक और सॉल्ट एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट आपके इसमें वीडियो में दूंगी। तो फिर उसके बाद में आपको खुद को जो है करने होंगे 2-3 पैसेज, वो मैं डेली एक दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।